So let's start. We'll be attempting the second question in February 2023 का जो आपका paper 5 आया था. We did the first question in the last class. जो हमारा दूसरा question था वो रह गया था. It's a smaller question. It's worth 10 marks. तो hopefully हम जल्दी खत्म भी कर लेंगे. ठीक है, आप बस गौर से सुनते रहिएगा as I read through the question. Rice, blah blah blah, is an important food crop. Rice plants are wind pollinated. Pollen containing the male gamete is transferred by the wind to female reproductive organs of rice plants. Fertilization and grain formation then occurs. VD rice is a wild form of rice that grows in fields of cultivated rice. ठीक है, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. VD rice वीड्स नहीं होता, आपको पता है, दीज आर अनवांटेड प्लांट्स. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे एक टर्म दी है. वीडी राइस एक ऐसा राइस प्लांट होता है जो कि नॉर्मल राइस जो हम कल्टिवेट करे होते हैं ना उनके साथ ग्रो करना शुरू कर देता है. सो वीडी राइस इज अ वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस दैट ग्रोज इन फील्ड्स ऑफ कल्टिवेटेड राइस. वीडी राइस competes with cultivated rice for resources just like any other wheat. जो वीडी राइस होता है वो बेसिकली compete करता है कल्टिवेटेड राइस के साथ फॉर सॉइल रिसोर्सेज, जैसे आयंस हो गए सॉइल में, सॉइल वाटर हो गया एंड बाकी चीजें. वीडी राइस प्लांट्स आर टॉलर देन कल्टिवेटेड राइस प्लांट्स एंड प्रोड्यूस अ लो यील्ड ऑफ राइस ग्रेन्स. एग्जाम बता रहे हैं जो वीडी राइस प्लांट्स हैं दे आर टॉलर देन द कल्टिवेटेड राइस प्लांट्स, बट उनकी यील्ड जो है वो क्या होती है, जो राइस ग्रेन्स होते हैं उनमें यील्ड इतनी अच्छी खासी नहीं होती है. Several genetically modified varieties of cultivated rice have been developed. One concern about the use of GM rice is gene flow from GM rice plants to VD rice. So one concern is what? Gene flow from GM rice plants to VD rice. और देखो आपने ना ये टॉपिक किया हुआ है लाइक कि ट्रांसफर ऑफ genes from genetically modified plants to their wild relatives. आपको याद होगा हमने जब genetically modified crop plants किए थे उसमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ा था लाइक, तो उससे थोड़ा बहुत लिंक आपको नजर आएगा. इट्स अ यूनिक सिनेरियो जो एग्जाम ने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बट यू कैन समहाउ रिलेट टू something that you have done of the similar type in your course as well. One concern about the use of GM rice is gene flow from GM rice plants to VD rice. Gene flow occurs when the wind carries pollen from GM rice plants to VD rice plants. So when wind carries pollen from GM rice plants to VD राइस प्लांट्स. ठीक है, और फिर जब पॉलन ट्रांसफर होगा, फर्टिलाइजेशन होगी लाइक, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे जो ग्रेन प्रोड्यूस हो उसके अंदर बेसिकली आपके पास वो जीन ट्रांसफर, आपको वो जीन नजर आए जो कि ट्रांसफर होके आई थी पॉलन के थ्रू. सम साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेटेड gene flow from herbicide resistant GM rice plants to VD rice plant. अब herbicide resistant GM rice plants should not be new for you. आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था ना क्या नाम है genetically modified crop plants, तो उसमें हमने herbicide resistant crop plants भी बनाए थे लाइक, और ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जब आप herbicide sprays करो तो weeds मर जाएं, बट ये genetically modified plants जो है इनकी yield में कोई effect ना है. I'm hoping कि आपको थोड़ा बहुत याद होएगा. So some scientists investigated gene flow from herbicide-resistant GM rice plants to VD rice plants. So they investigated gene flow from what? From herbicide-resistant GM rice plants to what? To VD rice plants. The GM rice plants had a gene for herbicide resistance. VD rice plants do not have the gene for herbicide resistance. Like, scientists wanted to test the hypothesis that gene flow from GM rice to VD rice decreases as the distance between the GM rice crop and VD rice increases. पता नहीं आपको ये टर्म याद है नहीं, हमने ये टर्म की थी एक सेफ प्लांटिंग डिस्टेंस. लाइक क्या टर्म किया था हमने? सेफ प्लांटिंग डिस्टेंस. ये बेसिकली डिट्टो वही चीज आपको यहाँ पे बता रहा है लाइक, और यहाँ पे एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप जो है वो जो जीएम राइस प्लांट्स हैं जहाँ वो ग्रो कर रहे हो, अगर आप उससे एक सर्टेन डिस्टेंस दूर वीडी क्या नाम है राइस प्लांट्स ग्रो करो तो वो जो ट्रांसफर ऑफ जीन होता है ना वो बेसिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा लाइक. तो ये आपको बता रहे हैं हाइपोथेसिस में दोबारा पढ़ रहा हूँ. जीन फ्लो फ्रॉम जीएम राइस टू वीडी राइस decreases as the distance between the GM rice crop and VD rice increases like. ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगा भाई ये हाइपोथेसिस देख के बताओ कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, कॉमन सेंस लगाना. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द जीएम राइस क्रॉप एंड द वीडी राइस, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा लाइक. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा? जीन फ्लो फ्रॉम जीएम राइस टू वीडी राइस. समझ में आ गई? ये आपका दो
वेरिएबल्स हो जाएंगे जो आप आराम से इस हाइपोथेसिस से आइडेंटिफाई कर सकते हो. द साइंटिस्ट प्लांटेड जीएम राइस एंड वीडी राइस इन अ फील्ड as shown in figure 2.1. Figure 2.1 also shows the wind normally blows in a northwest direction. ये जो आपको एरो नजर आ रहा है ना, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ विंड का नजर आ रहा है. आगे उसने यहाँ पे एक की भी आपको दिया हुआ है, लाइक कंपास टाइप आपको बना के दिया हुआ है ताकि आप देख लो. सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बेसिकली ये करिए विंड फ्लो करिए इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ये एरो आपको ये शो कर रहा है. अब गौर से ना ये डायग्राम देखो क्या दिया हुआ है. अंदर जो तुम्हें ब्लैक डॉट नजर आ रहा है ना, लाइक ऐसा लग रहा है डॉट बना हुआ है, लाइक ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जीएम राइस प्लांट्स ग्रो किए हैं, लाइक ठीक है. फिर आप देखो 4 रिंग्स और मार्क हुई हुई है, लाइक क्या नाम है, एज यू गो सर्टेन डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर 4 डिफरेंट रिंग्स आपको लाइट ग्रे कलर की नजर आ रही है. लाइक पहली जो सबसे इनर मोस्ट रिंग है दैट इज 1 मीटर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द जीएम राइस प्लांट, जहाँ पे वीडी राइस प्लांट्स वो किए हुए हैं. ये जो ग्रे कलर का आपको नजर आ रहा है ये वीडी राइस प्लांट्स के लिए रीजन नजर आ रहा है, और बीच में व्हाइट है ना, दैट जस्ट शोज यू बेयर सॉइल, यहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं ग्रो कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपके पास जो है वो जीएम राइस प्लांट्स है, फिर बेयर लैंड है, फिर उसके बाद आपके पास 1 मीटर डिस्टेंस पे क्या लगे हुए हैं, वीडी राइस प्लांट्स लगे हुए हैं, फिर बेयर लैंड है, फिर 2 मीटर पे आपके पास अगेन वीडी राइस प्लांट्स लगे हुए हैं, फिर बेयर जो है वो लैंड है, फिर जो है वो 5 मीटर्स में आपके पास वीडी राइस प्लांट्स लगे हुए हैं, और फिर एक और आपको नजर आ रहा है 10 मीटर में वीडी राइस प्लांट लगे हुए हैं. तो ये आपको नजर आ रहा है डिस्टेंस वेरी कर रहे हैं हम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द जीएम राइस प्लांट्स. वीडी राइस प्लांट्स आर प्लांटेड एट 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर एंड 10 मीटर्स फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द जीएम राइस प्लांट्स. एक तो ये आपके पास था ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो ये नजर आ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द वीडी राइस प्लांट्स फ्रॉम द जीएम प्लांट्स. आप देखो यहाँ पे एक और वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट आपको नजर आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द क्या नाम है, द डायरेक्शन ऑफ द विंड ब्लो अक्रॉस द राइस फील्ड आपको नजर आ रहा है. दैट इज ऑल्सो वेरिएबल ना. आप देखो डिफरेंट डायरेक्शन दी हुई है, लाइक और सबसे जो ज्यादा डायरेक्शन है वो जो नॉर्मली विंड डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ वेस्ट की उसमें, बट द एग्जामिनर इज गिवन यू a scale over here to see कि there are different directions in which the winds can blow. तो जो डायरेक्शन ऑफ विंड ब्लो है ना, वो भी बेसिकली क्या बन सकता है, फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन सकता है, बिकॉज दैट इज आल्सो अफेक्टिंग व्हाट, द जीन फ्लो फ्रॉम जीएम राइस प्लांट्स टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द क्या नाम है, वीडी राइस प्लांट्स. बिकॉज विंड जहाँ ब्लो करेगी सही से बात तो उसी डायरेक्शन में पॉलन ट्रांसफर होगा ना, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई उसी डायरेक्शन में आपके पास ज्यादा क्या नजर आ रहा हो, आपको जीन फ्लो भी नजर आ रहा हो. तो ये भी एक वेरिएबल है, विंड डायरेक्शन जो है ना, ये भी एक वेरिएबल है जो कि अफेक्ट कर रहा है आपका जीन फ्लो को. दैट इज अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो उसने यहाँ पे जो आपको एग्जैक्टली बहुत क्लियरली नहीं लिखा हुआ हाइपोथेसिस के अंदर, बट यू कैन सी दैट फ्रॉम द डायग्राम. सो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिस्टेंस फ्रॉम द जीएम राइस प्लांट्स, और दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ विंड ब्लो फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द जीएम राइस प्लांट्स. वो भी आपके पास क्या है यहाँ पे एक किस्म का क्या नाम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब नेक्स्ट पार्ट में ये डायग्राम आपके पास, आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि डायग्राम आपके पास हो, अगर इससे कोई भी सवाल कर रहा हूँ, मेक श्योर दैट यू हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आफ्टर द प्लांट्स हैड बीन पॉलिनेटेड and the rice grains had developed, the grains were collected from the weedy rice plants only. तो आपने grains collect किए weedy rice plants से. Grains were collected from all weedy rice plants growing 1 meter from the GM rice plants in the directions north, northeast, east, southeast, south, southwest, west, northwest. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ डिफरेंट डायरेक्शंस पे आपके पास जो 1 मीटर पे सारे राइस प्लांट्स, वीडी राइस प्लांट्स वो किए थे ना, आपने उनके ग्रेन्स कलेक्ट कर लिए. लाइक ग्रेन्स वर आल्सो कलेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, यानी ये जो 8 डायरेक्शन है, फ्रॉम द जीएम राइस प्लांट्स एट डिस्टेंसेस ऑफ 2 मीटर, 5 मीटर एंड 10 मीटर. तो आपने बेसिकली हर जो 4 डिफरेंट डिस्टेंसेस दिए हुए थे ना, हर डिस्टेंस पे आपने जो 8 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं जिसमें विंड ब्लो कर सकता है, लाइक उसकी आपने जो है वो वहां से ग्रेन्स कलेक्ट कर लिए, लाइक वीडी राइस प्लांट्स के. Approximately 1,000 grains from each collection point were planted and germinated in controlled conditions in a glass house. The plants were grown for 3 weeks and then tested to determine whether they had the gene for herbicide resistance. I hope आपको इन बुलेट पॉइंट्स के थ्रू थोड़ा सा सिनारियो समझ में आ गया, लाइक कि एग्जामिनर यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं ना जीन फ्लो हुआ है यानी जीएम राइस प्लांट से बीडी राइस प्लांट में. तो वो देखने के लिए उसने 4 डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस लिए, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, और फिर हर डिस्टेंस पे 8 डिफरेंट लोकेशन जो थे ना जिसमें विंड ब्लो कर रहा था, लाइक वहां पे जाके ग्रेन कलेक्ट किया और फिर उन ग्रेन्स को ग्रो कराया, और फिर आप चेक कर रहे हैं भाई कि आफ्टर 3 वीक्स आपके पास इनमें जीन फॉर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस आई है या नहीं आई है. दैट्स द होल सिनेरियो. लाइक इफ यू मेक सेंस ऑफ द सिनेरियो यू विल एक्चुअली नो
what will follow after this, like आप थोड़ा बहुत ना आप खुद ब खुद भी predict करना शुरू होगा किस तरह जो है question evolve करेगा. Figure 2.2 shows young rice plants 3 weeks after germination. तो ये आपको वो नजर आ रहे हैं BD rice plants 3 weeks after germination. Identify the two independent variables in this investigation. तो एक तो क्या है आपके पास, distance from the GM rice plants, distance from the GM rice plants, from the GM rice plants, and the direction of wind blow, direction of wind blow from GM rice plants. From what? From GM rice plants. ठीक है. Next part. Some of the young VD rice plants had the gene for herbicide resistance. This gene had been carried to the parents of these plants in pollen from GM rice plants. Outline a method the scientists could use in the glass house to determine how many of the young VD rice plants had the gene for herbicide resistance. Your method should not require the extraction of nucleic acid. मतलब कि जीन को और डीएनए को निकाल के उसमें जीन नहीं देख सकते, उसके अलावा कोई मेथड बता. तो सिंपल है ना भाई, जिन यंग वीडी राइस प्लांट्स के पास हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होगी, ये हर्बिसाइड से मरेंगे नहीं, बाकी वाले मर जाएंगे. तो आप सिंपली क्या करोगे, अप्लाई हर्बिसाइड टू ऑल द वीडी राइस प्लांट्स. उनमें से जो सर्वाइव करेंगे उनको आप काउंट कर लो, वो आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा. लाइक तो आप क्या करोगे, अप्लाई herbicide spray to rice plants and count the number of plants that survive, that सर्वाइव. लाइक ये आपका आराम से इसका, आप इसमें वो नहीं कर सकते. देखो आइडियल मेथड तो ये होता है ना कि आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करो और डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है उसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की जीन आइडेंटिफाई करो. तो उसने खुद लिख दिया भाई ये नहीं कर सकते आप, हर प्लांट में से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे, उसके अलावा कोई मेथड देना है. तो सिंपल है भाई, अगर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की जीन गई है तो हर्बिसाइड से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी ना यार उन क्या नाम है वीडी राइस प्लांट्स की. तो आप हर्बिसाइड स्प्रे कर दो सबको. लाइक जो बच जाएंगे उनको काउंट कर लो, दीज आर द वंस दैट विल हैव herbicide resistance gene. Part 3. The scientists calculated the percentage of young VD rice plants that had the gene for herbicide resistance. This percentage was used as a measure of gene flow. The percentage gene flow recorded at each northwest collection point is shown in figure 2.3. Figure 2.3 also shows the percentage gene flow recorded at each distance from the GM rice plants at all the other collection points combined. टोटल 8 कलेक्शन पॉइंट थे ना आपके पास, लाइक जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे थे. तो उन 8 में से ये वाला जो था नॉर्थ वेस्ट वाला कलेक्शन पॉइंट, उसका एक अलग ग्राफ आपको यहाँ नजर आ रहा है. नीचे देखो की बनी हुई है, नॉर्थ वेस्ट कलेक्शन पॉइंट जो आपके पास थे लाइक एट डिफरेंट डिस्टेंसेज. वो डिस्टेंस क्या थे, 1 मीटर. यहाँ पे मैं लेवल कर देता हूँ, 4 डिस्टेंसेस थे ना यहाँ आपके पास डिस्टेंस था 1 मीटर का, उस पर आपके पास वैल्यू है, एम छोड़ देता हूँ. फिर आपके पास 2 मीटर पे था, वो ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है. फिर आपके पास 5 मीटर पे था, और फिर आपके पास 10 मीटर पे था, वो वैल्यू भी आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ. तो 1, 2, 5 और 10 पे ही आपको नजर आ रहे हैं जो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट हुए हैं. लाइक तो नॉर्थ वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स का ये वाला पूरा ग्राफ है, और जो बाकी सारे अदर कलेक्शन पॉइंट्स हैं जो बाकी 7 हैं उनका ये कंबाइंड ग्राफ है. वाई एक्सिस पे परसेंटेज जीन फ्लो है और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम जीएम राइस प्लांट्स है. लाइक अब गौर से देखो यार, पहली डिडक्शन आप क्या कर सकते हो जो बहुत आसान है. लाइक दोनों ग्राफ्स में वो एक रफली ट्रेंड आपको नजर आ रहा है that as the distance from GM rice plant is increasing, the percentage gene flow is decreasing. वो इस ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा है और रफली इस ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा है. As the distance from what is increasing, as the difference from the GM rice plant is increasing, the percentage gene flow is decreasing. क्योंकि आगे वो आपसे पूछेगा ना यार, मतलब डिस्क्राइब करो, या मुझे एग्जैक्ट सवाल नहीं याद बट डिस्क्रिप्शन टाइप कुछ पूछेगा, तो आपने ध्यान में रखो भाई जिस तरह आपके पास जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द जीएम राइस प्लांट इंक्रीज कर रहा है, जो आपके पास परसेंटेज जीन फ्लो है वो डिक्रीज कर रहा है. एक तो ये आपने निकाल लिया है. दूसरी चीज जो आप देख सकते हो कि जो परसेंटेज जीन फ्लो है at each distance that you have measured, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, गौर से देखो कि 10 मीटर को हटा के बाकी जो 3 डिस्टेंसेस पे आपके पास परसेंटेज जीन फ्लो है ना, दैट इज हायर
in the northwest direction as compared to all other directions combined. नजर आ रहा है परसेंटेज जीन फ्लो का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो 1, 2 और 5 मीटर पे, उसको तुम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखो, जो आपके पास कलेक्शन पॉइंट थे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उनमें परसेंटेज जीन फ्लो ज़्यादा है एट 1, 2 एंड 5 मीटर, और यहाँ पे आप देखो रिलेटिवली क्या है, लो है। तो ये आप एक और पॉइंट दे सकते हो लाइक। और एक और चीज़ आप कह सकते हो कि भाई कि परसेंटेज जीन फ्लो at 10 meters is what is zero and in all direction guys, आठों की आठों डायरेक्शन जो है इंक्लूडिंग ये वाली एंड द नॉर्थ वेस्ट, जो जिसका ये ग्राफ बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और बाकी जो साइड डायरेक्शन, इन सब डायरेक्शन में परसेंटेज जीन फ्लो इज जीरो एट व्हाट एट 10 मीटर्स। जो बाकी डायरेक्शन है उसमें तो 5 मीटर के बाद भी जीरो हो जाता है लाइक नॉर्थ वेस्ट के अलावा, बट चूंकि नॉर्थ वेस्ट में उस वक्त है तो आप ये भी एक लिखना चाहो तो ये भी एक मार्किंग पॉइंट आप दे सकते हो भाई कि अदर देन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बाकी सारी डायरेक्शन में जीन फ्लो इज परसेंटेज जीन फ्लो इज जीरो बियॉन्ड 5 मीटर्स लाइक। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में परसेंटेज जीन फ्लो इज जीरो एट 10 मीटर्स एंड भी जाहिर सी बात है जीरो बियॉन्ड एज वेल। तो ये आपकी ना छोटी सी डिडक्शन हो जाएंगी फ्रॉम व्हाट फ्रॉम द ग्राफ दैट इज शोन टू यू ओवर हियर ऑफ परसेंटेज जीन फ्लो एज अगेंस्ट व्हाट अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम GM राइस प्लांट। तो वही आपसे पूछ रहे हैं स्टेट टू कंक्लूजंस दैट कैन बी मेड from the data shown in figure 2.3। तो दो आसान आसान जबान में लिखना लाइक that as the distance from the GM rice plant increases, GM rice plant increases the percentage gene flow decreases और 10 मीटर वाला लिख दो क्योंकि वो ज़्यादा आसान लिखना लाइक, या वो भी लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया था लाइक कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एट ईच डिस्टेंस हायर परसेंटेज इनफ्लो, आप वो भी लिख सकते हो। मैं आसान वाला यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक क्या नाम है एज द सेकंड मार्किंग पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो द परसेंटेज जीन फ्लो इज ज़ीरो at 10 meters। ठीक है, ये आपके दो मार्किंग पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट, वीडी राइस प्लांट्स हैव अ जीन दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज हाइट। तो वीडी राइस प्लांट्स के पास एक ऐसी जीन होती है लाइक जो कि हाइट इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जीएम राइस प्लांट्स डू नॉट हैव दिस जीन। This gene allows gene flow from VD rice plants to GM rice plants to be investigated। देखो आप जब जीन फ्लो देखते हो तो आप यूजली वो वाली जीन पिक करते हो देखने के लिए जो एक के पास हो और दूसरे के पास ना हो। जैसे आपने जीएम राइस प्लांट्स में हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की जीन डाली है जो कि वीडी के पास नहीं है, तो आप जीन फ्लो यहाँ से यहाँ यूजिंग द हर्बिसाइड रेजिस्टेंस देख सकते हो। और वीडी राइस प्लांट के पास एक ऐसी जीन है जो कि हाइट के लिए होती है, इंक्रीज हाइट के लिए, जो कि जीएम राइस प्लांट्स के पास नहीं है। तो आप अगर देखना चाहते हो कि जीन फ्लो यहाँ से वीडी राइस प्लांट से जीएम राइस में हो रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाली जीन देख सकते हो। सो इन अ सेकंड स्टडी the scientists investigated gene flow from herbicide resistant GM rice plants to VD rice plants and gene flow from VD rice plants to herbicide resistant GM rice plants। तो आपको समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा है लाइक, वो देखना चाह रहा है भाई अब टू वे ट्रैफिक हो रही है नहीं हो रही है लाइक कि वो जीएम राइस प्लांट से जो वीडी राइस प्लांट है उसमें जीन फ्लो देखने के लिए वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन यूज करेगा, और वीडी राइस प्लांट से जीएम राइस प्लांट में जो जीन फ्लो है उसको देखने के लिए वो जीन फॉर हाइट यूज कर लेगा लाइक। तो अब ये सेकंड स्टडी में दोनों चीजें देख रहा है लाइक, क्या है वो दोनों चीजें देख रहा है, ये अपने जहन में रखो लाइक। ठीक है, आप देखो वो क्या बता रहा है आपको। द साइंटिस्ट प्लांटेड जीएम राइस एंड बीडी राइस इन एरियाज नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ फील्ड। तो भाई दोनों को आजू बाजू ग्रो कर दिया इन एरियाज नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ फील्ड, क्योंकि जीन फ्लो देखना है ना आजू बाजू में आपस में जीन फ्लो हो रहा है या नहीं। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ हम कौन सी जीन फ्लो देखना चाह रहे हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की। और यहाँ से यहाँ हम कौन सा जीन देखना चाह रहे हैं जो हाइट के लिए आपके पास है ना, जिसकी वजह से टॉल हाइट होती है लाइक। आप ये दोनों जीन्स क्यों यूज़ कर रहे हो, बिकॉज हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की जीन इसके पास है, इसके पास नहीं है, और जीन फॉर टॉल हाइट इसके पास है और इसके पास नहीं है, और हम देखना चाह रहे हैं भाई फ्लो हो रहा है नहीं। आप सवाल समझो यार, कैसा फिट सवाल है, आपको मजा आएगा फिर। आफ्टर द प्लांट्स हैड बीन पॉलिनेटेड and the rice grains had developed, 1,000 grains were collected from VD rice plants at each of the 8 sampling sites, and 1,000 genes were collected from GM rice plants at each of 8 sampling sites। ये 8 sampling sites क्या होती हैं, वो जो different directions नहीं थी 8 directions उनकी बात करें लाइक। Plants were grown from the grains that had been collected and tested to determine
the percentage gene flow between the VD rice plants and the GM rice plants at each site. अब ये रिजल्ट्स आपको दिए हैं. टेबल 2.1 shows the results of the investigation. ये है परसेंटेज जीन फ्लो फ्रॉम GM राइस प्लांट्स टू VD राइस प्लांट्स, और यहाँ मीन है. आप में से कोई एक बच्चा प्लीज इन सबको ऐड करके फॉरन मीन निकाले, लाइक मुझे बता दे, लाइक जब तक मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ. परसेंटेज जीन फ्लो फ्रॉम VD राइस प्लांट्स टू GM राइस प्लांट. तो जब आप नींद कम करके जाते हो ना एग्जाम में, तो आपको ऐसा लगता है सेम ही चीज लिखी हुई है, सेम ही लिखी हुई. एक में आपके पास परसेंटेज जीन फ्लो है GM राइस से VD राइस में, दूसरे में है VD राइस से GM राइस में, तो अलग अलग बिल्कुल ऑपोजिट चीजें लिखी हुई है लाइक. तो यहाँ का जो परसेंटेज जीन फ्लो था आपके पास 8 डिफरेंट वो जो सैम्पलिंग साइट्स थी उसका आपको दिया हुआ ना, लाइक 1 2 3 4 8 डिफरेंट लोकेशंस वो सैम्पलिंग साइट्स नहीं था, हर साइट से 1000 ग्रेन्स लिए थे, उनको ग्रो किया था, फिर आपने चेक किया था लाइक. तो ये वैल्यूज हैं, उसका मीन ये है. कैन यू टेल मी व्हाट्स द मीन वैल्यू है? चलो भाई, द मीन टर्न्स आउट टू बी 0.0, 3 डेसिमल प्लेस तक देना है तो हम 3 डेसिमल प्लेस तक देते हैं, 0.036 आपके पास आ जाएगा. कंप्लीट टेबल 2.1 बाय कैलकुलेटिंग द मीन परसेंटेज जीन फ्लो फ्रॉम GM राइस प्लांट्स टू VD राइस प्लांट्स. ये हमने निकाल लिया लाइक, बस मैं मीन वैल्यू ले देता हूँ. सो द वैल्यू ऑफ मीन टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 0.036. Next part, the scientists decided to carry out a t-test to compare the gene. अब आप means को compare करना चाह रहे हो, तो t-test is the ideal test to use. The scientists decided to carry out a t-test to compare the percentage gene flow from GM rice plants to VD rice plants with the percentage gene flow from VD rice plants to GM rice plants. The scientists stated the null hypothesis. No difference between the percentage gene flow from GM to VD and the percentage gene flow from VD to GM. Null hypothesis आप खुद भी लिख सकते थे, खैर खुद, ये 1 मार्क का आपको दे सकता था पार, उसने खुद ही लिख दिए. इतने मार्क्स नहीं हो जाते, पहला क्वेश्चन ही इतना लंबा दे दिया था यार, इसमें मार्क्स नहीं मुझे देखने को. द साइंटिस्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ टी एज व्हाट, एज 9.043. ये आपकी टी वैल्यू आ गई लाइक. द टेबल 2.2 shows the probability table for the t test. तो आपको दिया हुआ है आपकी जो टी की वैल्यू आई है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9.043 आया. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या होंगे लाइक, सबसे पहले तो ये आपको निकालना था. तो ये देखो यार, टी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, N1 प्लस N2 माइनस 2. उसने आपसे कैलकुलेट नहीं कराया, डायरेक्टली वो आप ज्यूम कर रहे हैं. इतने टाइट हो गए आप, इतने अच्छे बच्चे हो गए, आपको वैसे ही पता होगा, इसके लिए मार्क्स ही नहीं रखे रहेंगे. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपने 8 सैम्पलिंग लोकेशन यूज की थी, आपको याद है, यू यूज 8 सैम्पलिंग लोकेशन लाइक. तो 8 प्लस 8 माइनस 2 आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा. 14 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे आपने देखनी है क्रिटिकल वैल्यू क्या है. तो 14 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में P इक्वल्स टू 0.05 पे ये वैल्यू है, P इक्वल्स टू 0.01 पे ये वैल्यू है. हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इन दोनों वैल्यू से ज़्यादा है. वो ये पूछते एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू टेबल 2.2 व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द डेटा कलेक्टेड बाय द साइंटिस्ट. तो बहुत सिंपल है ये वो क्वेश्चन जिनमें आप 1 मार्क भी लूज नहीं करोगे. तो आप बताओगे भाई जो critical value of t at P equals to 0.05 is what, is 2.145. ठीक है ना लाइक. फिर आप बताओगे calculated t is greater than what, is greater than the critical value of t, which implies what, that P is less than 0.05. Therefore null hypothesis is rejected. And there is a significant difference, in the percentage gene flow. आगे मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आप पीछे से बेशक उसको कॉपी कर लेना. जीन फ्लो फ्रॉम what, from VD rice plants to GM rice plants compared with what, जो GM rice plants to VD rice plants. ठीक है, आप वो स्टेटमेंट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लोगे लाइक. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, द रिजल्ट्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट. बाय द वे दीज आर 4 मार्किंग पॉइंट्स, आपको 3 के लिए लिखना है. आप ये 3 भी लिख दोगे आपको मार्क मिल जाएगा लाइक. Part 3. The results of this investigation were published in a scientific paper. A student who read the paper concluded that the results showed that there were no reasons to be concerned about gene flow from GM plants to white plants. तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो कह रहा है घबराए नहीं आप. Suggest one reason why the results of this investigation should not be interpreted in this way. इसका सबसे लॉजिकल आंसर तुम ये ले सकते हो भाई कि ये जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया है ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है कि आपने जो है वो 10 बार जनरेशन में ये देखा हो और फिर आपने ये रिडक्शन दी हो.
भाई एक लिमिटेड टाइम में आपने एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में आपने ये रिसर्च की है, तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है लाइक जिसके ऊपर आप ये क्या नाम है इस तरह की इंटरप्रिटेशन दे सकते हो। तो आप एक मार्क के लिए सिर्फ क्या ले सकते हो, देयर इज नो लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल टू बेसिकली मेक सच ए इंटरप्रिटेशन। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपके रिव्यू के लिए आगे इसका मार्क्स स्कीम भी अटैच कर दिए, आप आराम से मार्क्स स्कीम भी रिव्यू कर लेना, एक दफ़ा फिर क्वेश्चन रिव्यू कर लेना और मौज मस्ती करना। ठीक है भाई।